کردار ہے اس کا خون خوار، کام ہے اس کا چیڑ پھاڑ، بولے تو لگے چنگھاڑ، جب جھنڈ میں کرنے نکلے شکار، جب بھی دے اپنوں کو پکار، جنگل کے بادشاہ کو بھی دے للکار، وہ بھی سامنے اس کے ڈال دے ہتھیار، ایسا دبدبا ہے اس کا پراسرار، دشمن پر کرے ایسا وار، پل بھر میں کر دے آر پار، خوف ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار، یہ ہے بھیڑیا قدرت کا شاہکار۔ میں ہوں وائلڈر بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائلڈستان۔ تعارف: بھیڑیا جانوروں کے گروپ میں ممالیہ جانور ہے، یعنی یہ جانور بھی انسانوں کی طرح اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہے۔ ممالیہ جانوروں میں بھیڑیا کارنیور ہے، مطلب یہ ایک گوشت خور جانور ہے جو کہ شکار کر کے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ کارنیور میں بھیڑیا کینیڈی یعنی ڈاگ فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈاگ فیملی میں بھیڑیا کے ساتھ لومڑی، گیدڑ، کتا وغیرہ شامل ہیں۔ اقسام: بھیڑیا کی دو اہم اقسام ہیں، ریڈ ولف یعنی سرخ بھیڑیا اور گرے ولف یعنی سرمئی رنگ کا بھیڑیا۔ اس کے علاوہ 40 ذیلی اقسام یعنی سب سپیشیز بھی ہیں جو کہ دنیا میں شمالی امریکہ، یورپ، ایشیا اور افریقہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ہر علاقے کی مناسبت سے بھیڑیا کو مختلف نام دیا جاتا ہے، مثلاً جنگل کے بھیڑیا کو ٹمبر ولف، برفانی علاقے کے بھیڑیا کو تندرا ولف، جنوبی ایشیا کے ممالک انڈیا، پاکستان وغیرہ کے بھیڑیا کو انڈین ولف، ایتھوپیا کے بھیڑیا کو ایتھوپین ولف اور میکسیکو کے بھیڑیا کو میکسیکن ولف کہا جاتا ہے۔ بھیڑیا کے جسمانی خد و خال: بھیڑیا کا اوسط قد 30 انچ، اوسط وزن 45 کلو گرام اور اوسط لمبائی منہ سے دم تک تقریباً 6 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ اس کا منہ لمبا، بڑے بڑے کان اور تقریباً ہر بھیڑیا کی موٹی کھال یعنی فر ہوتی ہے جو کہ اکثر گرے یعنی سرمئی رنگ کی ہوتی ہے۔ بھیڑیا ڈاگ فیملی کا سب سے بڑا ممبر ہے۔ یہ اپنے شکار کی آواز 6 میل دور سے سن لیتے ہیں۔ ان کی سونگنے کی طاقت انسان سے 100 گنا زیادہ تیز ہے۔ اسی طرح شکار کو میلوں دور سے بھی سونگ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی رفتار 45 میل فی گھنٹہ ہے، جبکہ یہ شکار کے پیچھے 30 میل تک سفر صرف ایک دن میں ہی کر سکتے ہیں۔ غذا: ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھیڑیا ایک شکاری جانور ہے۔ اس کے اہم شکار میں جنگلی سانڈ یعنی بائسن، خرگوش، موز ہرن، جنگلی دمبے شامل ہیں۔ لیکن یہ بات جاننی ضروری ہے کہ ہر علاقے میں ان کا شکار الگ ہوتا ہے۔ یہ جھنڈ میں شکار کرتے ہیں اور ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے شکار کو بھگانا، ان کو الگ کرنا، سب سے کمزور شکار کو گرانا اور تھکا تھکا کر کاٹ کاٹ کر مار ڈالنا۔ خطرات: بھیڑیا کو دنیا میں 2 بڑے خطرات ہیں، ایک غیر قانونی شکار اور دوسرا انسانوں کی طرف سے جنگلوں کا خاتمہ کرنے سے بھی ان کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ دنیا میں 3 لاکھ بھیڑیے بچے ہیں اور پاکستان میں ان کی آبادی انڈینجرڈ ہے، یعنی ان کی آبادی خطرے سے دوچار ہے۔ بھیڑیا ماحول میں توازن رکھتے ہیں کیونکہ یہ قدرتی ماحول میں ٹاپ پریڈیٹر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگل میں اگر گھاس، خرگوش، لومڑی وغیرہ بھیڑیا کے ساتھ موجود ہوں تو یہ لومڑی کی تعداد کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائیں تو لومڑی کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ لومڑی ہرن اور خرگوش کے بچے مار مار کر ان کو بھی ختم کر دے، جبکہ بھیڑیا اتنی تعداد میں بچوں کو نہیں مارتے۔
इसी तरह हिरन के ख़त्म होने से घास की जगह अनचाही वीड्स आ जाएंगी और पूरा कुदरती निज़ाम ख़तरे में पड़ जाएगा। इसी तरह कुछ सालों या दहाइयों में वो जंगल एक बंजर ज़मीन बन जाएगी। आदात। भेड़िया झुंड में रहने वाला समाजी और अक्लमंद जानवर है। इसके झुंड को पैक कहते हैं। पैक में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 भेड़िया हो सकते हैं। पैक के मेंबर्स में अल्फ़ा मेल और अल्फ़ा फीमेल होते हैं जो कि पैक को लीड करते हैं और वही बच्चे पैदा करते हैं। बाकी पैक मेंबर्स को बीटा और ओमेगा कहा जाता है। बीटा और ओमेगा अल्फ़ा के ऑर्डर्स पर चलते हैं। बीटा और ओमेगा के लिए अल्फ़ा के ऑर्डर्स को ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसे हुआ तो हुक्म ना मानने वाले भेड़िया को सज़ा दी जाती है। इस तरह इनकी हायरार्की यानी दर्जा बंदी बन जाती है। पैक इनका एक ख़ानदान होता है जिसमें अल्फ़ा मेल और अल्फ़ा फीमेल का राज चलता है। कब शिकार करना है, किस जानवर पर हमला करना है, कहां से जान बचाकर भागना है, इस सब का फैसला अल्फ़ा ही करते हैं। पैक की अपनी एक टेरिटरी यानी इलाका होता है जिसकी सब मिलकर हिफाजत करते हैं। ये इलाका 50 मुरब्बा मील से लेकर 1000 मुरब्बा मील तक हो सकता है। इलाकों के लिए दूसरे पैक से भेड़िए की खूनख्वार लड़ाइयाँ भी होती हैं। पैक में बूढ़े और ज़ख्मी मेंबर्स का ख्याल रखा जाता है, बच्चों से प्यार किया जाता है और पैक के सबसे एक्सपीरियंस भेड़िया नस्ल दर नस्ल बच्चों को शिकार सिखाते हैं। भेड़िए पैक में साथ में दोस्तियाँ भी करते हैं और साथ में खेलते भी हैं। किसी पैक मेंबर के मर जाने पर रिसर्च से पता चला है गम का इजहार भी करते हैं। ये किलोमीटर से शिकार की बू सूंघ लेते हैं और अपनी अनोखी आवाज़ जिसे हाउलिंग कहते हैं से बाकी पैक मेंबर्स को शिकार, दुश्मन और ख़तरे की मौजूदगी का इशारा भी करते हैं। तो आइए नाजरीन अब जानते हैं भेड़िए से मुतल्लिक कुछ अफसानवी हक़ाइक़। भेड़िया सदियों से इंसान के कल्चर, मज़हब और अफसानवी किस्से कहानियों से जुड़ा हुआ है। कहीं पर इसको जुल्म, बर्बरियत की अलामत समझा जाता है, जबकि कहीं पर इसको बेपनाह हिम्मत, ताकत और वफादारी का निशान माना जाता है। मिसाल के तौर पर मगरबी एशियाई मुल्क जॉर्जिया का कदीम फ़ारसी नाम था वरकान, जिसका मतलब होता है भेड़ियों की सरज़मीन। ये लफ्ज़ बिगड़ कर गॉर्गन बन गया। फिर वक्त के साथ साथ ये गॉर्गन लफ्ज़ जॉर्जिया बन गया। यानी दोस्तों आप हैरान होंगे कि दुनिया में भेड़ियों के नाम पे एक पूरा मुल्क भी मौजूद है। भेड़िया तुर्की का कौमी जानवर है और कदीम तुर्क लेजेंड के मुताबिक तुर्क कौम भेड़िए की नस्ल से इस तरह परवान चढ़ी कि कदीम मंगोलिया के एक गांव पर चीनियों ने हमला किया तो तुर्कों के लेजेंडरी जद अमजद ने जंगल में पनाह ले ली, जहां मादा भेड़िया ने उनको अपना दूध पिलाया और परवरिश की। फिर चीनियों के जाने के बाद वो जंगल से निकले, बड़े होकर शादी कर ली। इस तरह तुर्क नस्ल वजूद में आई। रोमुलस और रेमोस कदीम इटली में 2 भाई थे जिनके मुतालिक लेजेंड है कि दुश्मन चचा ने उनके बचपन में उनको मारने का हुक्म दिया, लेकिन खादिम ने उनको दरिया के किनारे छोड़ दिया, जहां से वो बहकर एक मादा भेड़िया लूपा के पास पहुंच गए, जिसने इन बच्चों को अपना दूध पिलाया और परवरिश की। और फिर इन्हीं 2 भाइयों ने बड़े होकर रोम शहर की बुनियाद रखी, जो कि बाद में जाकर सल्तनत रोम कहलाई। इस तरह इटली और रोमन एम्पायर के दूसरे कल्चर्स में लूपा मादा भेड़िया को अज़मत की अलामत समझा जाता है। मंगोलिया में भेड़िया को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। बदकिस्मती से दोस्तों कुछ कल्चर्स में भेड़िया को जालिम और बेरहम भी माना जाता है और इससे नफ़रत का इजहार भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी, जो कि 17वीं सदी की मशहूर यूरोपी दास्तान है, आपने भी सुनी होगी, जिसमें एक लड़की रेड राइडिंग हुड अपनी दादी से मिलने जाती है और रास्ते में जंगल से गुजरते हुए एक भेड़िए की नज़र उस पर पड़ती है। भेड़िया उसको और उसकी दादी को खाना चाहता है,
وہ रेड राइडिंग हुड को दादी के लिए फूल ले जाने का मशवरा देता है ताकि वो देर से पहुंचे। रेड राइडिंग हुड इसी तरह करती है और भेड़िया रेड राइडिंग हुड से पहले दादी के घर पहुंच जाता है और दादी को खाकर उसका लिबास पहनकर दादी के बिस्तर पर लेटकर रेड राइडिंग हुड का इंतज़ार करता है और रेड राइडिंग हुड के पहुंचने पर उसे भी हलाक कर देता है। माइट इज़ राइट की कहानी में बच्चों को प्राइमरी क्लासेस से ही भेड़िया को जालिम और जाबिर के तौर पर दिखाया जाता है, जिसमें भेड़िया दुम्बे के बच्चे को पानी गंदा करने का इल्ज़ाम लगाकर जान से मार डालता है। वुल्फ के बारे में एक लेजेंड और भी मशहूर है कि ये चांद को देखकर चिंघाड़ता है और चांद यानी हुस्न का दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, आपको मायूस करता चलूँ कि इस मिथ को कोई साइंसी सबूत नहीं साबित कर सका। भेड़िया अक्सर रात के वक्त चिंघाड़ता है क्योंकि ये एक नॉकटर्नल जानवर है, ताकि अपने पैक के दूसरे मेंबर से रब्ता कर सके। इसलिए ये मिथ भेड़िया के मुतल्लिक मशहूर हो गई क्योंकि चांद भी रात को ही ज़्यादा रोशन होता है। भेड़िया को अक्सर माल मवेशी पालने वाले दुश्मन समझते हैं, लेकिन नाजरीन, भेड़िया भेड़ बकरियों पर हमला तभी करता है जब हम इंसान उसकी खुराक यानी हिरन वगैरह को शिकार कर करके और जंगल की कटाई कर करके ख़त्म ही कर देते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस डिसिप्लिन्ड और शानदार जानवर को मिलकर तहफ़्फ़ुज़ दें और इनको दुनिया से नापैद ना होने दें। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या भेड़ियों से इतनी नफ़रत करना ठीक है या हमें इनको और इनके जंगलों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं।